Student, this question is related with quantum mechanics. Very important question, came in NET exam 2014. Question is ground state energy of particle in the potential capital V bracket में x is equal to little g mod x estimated using the trial wave function. Trial wave function is given to me psi bracket x equal to root little c over a to the power 5 into a square minus x square for mod x less than a. mod x less than a का मतलब है x less than a and x greater than minus a and psi of x is 0 for mod x greater than equal to a. Four options are given to me. So I am to estimate ground state energy of particle in the potential V is equal to little g mod x. Student, Hamiltonian, we know Hamiltonian is operator which is kinetic energy operator plus potential energy operator. Kinetic energy operator is minus h bar square over 2m d2 by dx square plus potential function v bracket x is g little g into mod x. So student, trial wave function is given to me psi is equal to, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस रूट लिटिल सी और a to the power 5 into x square minus a square for mod x less than a and psi is 0 for mod x greater than equal to a. तो आइए स्टूडेंट वर्कआउट करते हैं. अब आप जानते हैं व्हाट इज कंडीशन फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड. कंडीशन फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड इज इंटीग्रल psi star dx equal to 1. So we first find normalization constant. Psi dash bracket x is equal to capital N psi bracket x. ये ध्यान दें कैपिटल psi bracket x जो हमें दिया है that is non normalized wave function. कैपिटल N से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. Then it will become psi dash x is a symbol of normalized wave function. What is condition for wave function to be normalized? Integral psi dash bracket x star psi dash bracket x dx equal to 1. हम सब जानते हैं psi dash x is complex wave function. Psi dash x star is complex conjugate wave function. अब यहाँ पे psi dash is n psi तो ये n star psi star and psi dash is n psi तो ये आ जाएगा n star into n is mod n square which is constant that is pulled outside the integration sign. So integral psi star into psi dx equal to 1. Therefore mod n square equal to 1 divided by integral psi star psi dx. Therefore mod x क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी 1 divided by स्क्वायर रूट psi star bracket little x psi bracket little x dx. अब हमें जो वेव फंक्शन दिया हुआ है for mod x less than a, मैंने अभी बताया था mod x less than a का मतलब है x less than a and x greater than minus a यानी x की वैल्यू minus a से a. अब psi star और psi star यहाँ आयोटा तो है नहीं तो psi star क्या होगा यही रहेगा psi भी यही है तो जब मैं psi star और psi दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट लिटिल c और a टू पावर 5 क्या बन जाएगा लिटिल c और a टू पावर 5 और लिमिट माइनस a टू a. और ये ध्यान दें ये इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन क्या होता है f of minus x equal to f of x. और आप जानते हैं ये भी मैंने साइड में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट. whenever limit is equal and opposite then check the integrand to be even or odd. और यहाँ पे इंटीग्रैंड जो है that is even और जब इंटीग्रैंड इवन हो तो आप जानते हैं डबली फैक्टर आता है और ये लिमिट माइनस a से क्या बन जाता है लिमिट 0 से a. सो देयरफॉर n is equal to 1 divided by 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि लिमिट इज इक्वल एंड अपोजिट. इंटीग्रैंड इवन हो तो फिर लिमिट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये इंटीग्रल लिमिट 0 से a ये आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर dx होल रेज़ टू पावर हाफ. तो ये आ जाएगा 2 into little c और a टू पावर 5. अब ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर का मतलब x टू पावर 4 प्लस a टू पावर 4
माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये dx, dx इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू पावर 5 ओवर 5, लिमिट पुट करने से a टू पावर 5 ओवर 5 प्लस a टू पावर 4 और dx का इंटीग्रेशन इज x और लिमिट पुट करने से a माइनस 2a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3 और लिमिट पुट करने से a क्यूब बाई 3 और ये पूरे जो चीज है ये जो डाउन स्टेप में पावर हाफ है अप स्टेप में जाके पावर माइनस हाफ बन गया। Therefore कैपिटल N is equal to 2 into little c और a to power 5, a to power 5 is common into 1 over 5 minus 2 by 3 plus 1 whole raised to power minus half। अब ये 1 by 5 minus 2 by 3 plus 1 सोल्व करके ये 8 और 15 आ जाएगा। So this is 2 into little c, ये a to power 5 a to power 5 cancel whole raised to power minus half, ये आ जाएगा 16 little c और 15 whole raised to power minus half। So this is how we find out value of normalization constant। After finding normalization constant we will proceed ahead। So student, continuation in context with that numerical sine trial wave function that is root little c or a to power 5 into a square minus x square for mod x less than a। अभी मैं बता रहा था psi dash of x is normalized wave function which is capital N into psi of x और psi of x की वैल्यू हमें given है वो मैंने incorporate किया। So this is for mod x less than a। So normalized wave function within the range where it is non-zero, यानी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साइन डैश किसके बराबर आ गया, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये रूट 15 और 16 और ये c से c कैंसल a टू पावर 5 इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर मोड x लेस देन a। अभी मैं कह रहा था मोड x लेस देन a का मतलब क्या है, x लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a, यानी x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन माइनस a। जब भी मोड x लेस देन a तो ये ध्यान दें एंड वर्ड यूज होता है। नाउ एनर्जी यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, इंटीग्रल साइन डैश स्टार कैपिटल E साइन डैश और ये लेफ्ट साइड में जिसकी हमें एवरेज वैल्यू बतानी है, कैपिटल E की एवरेज वैल्यू, यानी कैपिटल E इज इक्वल टू h की एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में h आ जाएगा, यानी साइन डैश स्टार और साइन डैश के बीच में हम h को इंकॉर्पोरेट करेंगे। अब साइन डैश स्टार और साइन डैश जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कैंसिल, तो ये 15 by 16 a to power 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको मैंने पहले बताया था ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन में डबल फैक्टर आता है। ऑफ कोर्स लिमिट तो माइनस a से है, लेकिन इवन फंक्शन में लिमिट जो है वो माइनस a से जो लिमिट 0 से जब लिमिट बनती है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन डैश स्टार की जगह x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आगे h जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, यानी माइनस h बार स्क्वायर 2m d2 dx स्क्वायर प्लस लिटिल g इनटू x। तो ये हैमिल्टोनियन h की जगह और ये साइन डैश की वजह x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसका रूट तो मैंने बाहर निकाल लिया और आगे ये dx दैट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो नाउ ये 2 और 16 कैंसिल हो गए, 8 हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट, d2 dx स्क्वायर इसके ऊपर, ये ध्यान दें ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर जब इसके ऊपर एक्ट करेगा d2 dx स्क्वायर जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के 2 बार एक्ट करेगा तो आप जानते हैं एक बार तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x का फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये वो 2 उसकी वजह से है। और h पर स्क्वायर रूट 2m विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड आउटसाइड इंटीग्रेशन।
और ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज, और ये dx हो गया। अब सेकंड टर्म लिटिल g, अब एक x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये है और एक x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये है, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये a x साथ में यहाँ पे आ रहा है dx, और ये ध्यान दें लिमिट 0 से a है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को अलग से निकाल के दिखा रहा हूं, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू x dx विद इन लिमिट 0 से a। अब ये x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू पावर 4, और x टू पावर 4 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x, पहले तो इसको आप देखो x स्क्वायर का स्क्वायर x टू पावर 4 इनटू x यानी x टू पावर 5 माइनस, और ये प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a टू पावर 4, और ये x माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई x क्यूब, यानी सिंपल मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया और ये dx। अब ये इंटीग्रेशन x टू पावर 5 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x टू पावर 6/6 और लिमिट पुट कर दे, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट पुट कर दे, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू पावर 4/4 लिमिट्स पुट कर दे। अब ये सब पूरा स्कूल अलजेब्रा करेंगे, जब स्कूल अलजेब्रा करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/6 a टू पावर 6 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने सेपरेटली वर्क आउट करके, अब देयरफॉर कैपिटल E is equal to 15 over 8 a to power 5 ब्रैकेट में माइनस h पर स्क्वायर और 2m इनटू, तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आप देखेंगे वो x3/3, तो लिमिट पुट कर दी a3/3 माइनस a स्क्वायर इनटू dx की इंटीग्रेशन x, तो लिमिट पुट करेंगे तो a स्क्वायर इनटू a2 प्लस लिटिल g, ये इंटीग्रेशन जो मैंने अलग से सोल्व करके वो रख दिया a to power 6/6, तो दिस इज 15/8 a to power 5, और ये 1/3 minus 1 is minus 2/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये एज इट इज हो गया। और दिस इज 15/8 a क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो जब a क्यूब कॉमन लिया a क्यूब और a to power 5 is a स्क्वायर, तो ये a क्यूब कॉमन हो गया, यहाँ पे a क्यूब बच गया, तो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ h यानी E is equal to, अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये देखेंगे ये 3 15 5 0 और ये 2 8 या 4, इसी प्रकार से 15 और 8 और ये 6 मल्टीप्लाई करके 5/16 a क्यूब ओवर a स्क्वायर इज a। तो अब ये एनर्जी आ गई। आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 टाइम, 2 बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें। अब ये उसने क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा है कि एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, कितना एनर्जी मिनिमम हो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी। अब कोई भी चीज मिनिमम अपने आप नहीं होती, मिनिमम के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, तो ये मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका 0 करेंगे। सो लेट मी डिफरेंशिएट expression of energy with respect to small a. So d by dA acting on expectation value of h is equal to d by dA acting on E. अब differentiate कर लो E with respect to little a. तो 5h per square over 4m constant, 1 by small a square का derivative with respect to small a is minus 2 by small a cube. 5/16 little g constant, small a का derivative with respect to small a कितना होता है 1, और मिनिमम की कंडीशन क्या डिमांड करती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू लिटिल a इज इक्वल टू 0। आगे स्कूल अलजेब्रा ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, फिर हमने a क्यूब की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये सिंपलीफिकेशन आप देख रहे हैं, तो 8 का मतलब 2 क्यूब h ओवर स्क्वायर पे नीचे लिटिल m क्यूब, therefore taking क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 2 into h पर स्क्वायर और लिटिल m लिटिल g पावर 1/3, तो ये स्मॉल a का वैल्यू आ गया फॉर मिनिमम एनर्जी। अब इस स्मॉल a की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बैक, तो मुझे एनर्जी का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, यानी कैपिटल H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी E की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, E की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5h पर स्क्वायर और 4m इंटू 1 और a स्क्वायर, और a की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी है a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर यानी 4 और ये
ऊपर आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस 5/16 लिटिल g इंटू a का ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन किया तो ये लिटिल g की पावर 2/3 और ये स्मॉल m की पावर 2/3, नीचे स्मॉल m 1 - 2/3 1/3 और ये h बार की पावर 4/3 और ऊपर h बार स्क्वायर, तो 2 - 4/3 इज 2/3 और ये सिंप्लीफिकेशन 4 × 4 16, अपस्टेयर में 5 और डाउनस्टेयर में 16। इसी प्रकार से ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 5 और 2 16 ने 8 से कट दिया और ये h बार की पावर 2/3 लिटिल g और ये पावर 1 - 1/3 2/3 और ये स्मॉल m की पावर 1/3। अब ये कॉमन ले लिया, इसके प्लेस पे 1 आ गया, इसके प्लेस पे हाफ, एंड यू नो हाफ प्लस 1 इज 3/2 एंड फाइनली ये मल्टीप्लाई 3/2 इज 15/16 और ये ब्रैकेट में h बार स्क्वायर लिटिल g स्क्वायर ओवर m पावर 1/3। तो ये चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मैच हो रहा है। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन लेंथी है लेकिन ट्रिकी है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से जो है माइंड की ग्रोथ और माइंड की मैच्योरिटी होती है। तो प्लीज ये आपने देखा इस क्वेश्चन को क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम ट्रायल वेव फंक्शन की बात करते हैं, तो उस ट्रायल वेव फंक्शन में कैसा वेव फंक्शन हम ट्रायल वेव फंक्शन लें और एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आए। तो आई थिंक यू गॉट माय point what I mean to say. So thank you so much.